Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. This is the first week of February, and many children, school-going children, are a little more stressed during this time than what they were before. And then same may be the condition at home also. Many family members might be a little worried about how our children will perform in their final examination oblique board examination. Because in India, the academic year is from April to March. And in the month of February oblique March, or maybe in some state boards up to April, annual examinations are held. So whenever you are appearing in examination, there is always little extra stress which is experienced by everyone, particularly the students, and due to that, the family members also, the teachers also really feel little stressed because they are also worried that they had done so much hard work with their kids for the entire year. The children should be able to perform it well. Because sometimes what happens is that despite the fact the child would have been very, very sincere all through the year, because of certain issues may not be able to perform that well in the final examination. We all know the objective of examination is to learn. And our children have already spent about a year in whatever class they are learning for the entire year. So now this is the time when you are going to really find that at what level you stand, how much learning have you done during this year. So we shouldn't worry about certain things which we would have missed on in the past, because you can't go back, you can't rewind it and go back and do it again. No, that cannot be done. Now you have, because as I told you, this is the first week of February, so you have very limited number of days at your disposal before examination. So today I would like to stress upon one thing, that you should not really let yourself bog down because of additional stress which comes during this time. So how to take care of that? I would suggest a few points, and these will be in three parts: pre-examination, during examination, and finally after examination. So pre-examination, as I told you that we have already learned whatever we were to learn. We have already spent about a year in learning. Now, whatever learning has been done, you would have experienced that there are certain topics which you have done very well, which you are very confident about. I'm very sure there is no child who would say that I don't know anything. You would definitely know something, rather many things about many topics, what you have done in many subjects, or 5-6 subjects, whatever you are appearing in the examination. तो अगर आपको लग रहा है कि मैं 15 चैप्टर एक सब्जेक्ट में हैं और मैं वो 3-4 चैप्टर तो बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, या सभी चैप्टर्स में से मुझे ये टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से आते हैं, तो मेरी आप सब लोगों को सलाह होगी, मेरी पेरेंट्स को भी सलाह होगी, टीचर्स को भी सलाह होगी कि बच्चों को प्रेरित करें इस बात के लिए, मोटिवेट करें कि जो उनको बहुत अच्छा आता है उसको रिवाइज करें. क्योंकि अब अगर आप उनको कुछ भी नया पढ़ाएंगे या नया पढ़ने के लिए कहेंगे तो मुश्किल होगा उनके लिए इस वक्त में नई चीज़ को समझ पाना उतने अच्छे से जितने को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर वो समझ सकते थे. और इसमें कहीं ऐसा ना हो जिसमें बच्चों को अच्छा आता है वो भी कहीं छूट जाए. तो मेरी बच्चों से ये सलाह रहेगी कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है उसको रिवाइज कीजिए, और कहीं पे कुछ आपको जिसको आसानी से समझ सकते हैं एडिशनल, उसको समझ लीजिए. अगर आपको लगता है कि आपने अभी सिर्फ 60% ऑफ द सिलेबस और 70% ऑफ द सिलेबस यू कैन डू वेरी वेल, so focus on that 70%. Don't try to really venture into that 30% which is unknown territory for you as of now. अपना एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए. जैसा मैंने कहा पहले भी कि आप अपना टाइम इस वक्त जो भी, अगर आधा घंटा आप फोकस से पढ़ेंगे तो आपको 4 घंटे का रिजल्ट देगा जो आप जुलाई में 4 घंटे लगाते, क्योंकि इतना फोकस इस वक्त हमारा बढ़ जाता है. तो आप अपना शेड्यूल इस तरह से बनाइए कि टाइम वेस्ट नहीं हो. बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें अब 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ना है. नहीं, हमें अपनी नींद भी बराबर लेनी है, अपने आप को हमें हेल्दी भी रखना है, हमें हेल्दी खाना भी खाना है, और खाना एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है. मतलब बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं खाने की. कई बार क्या होता है ना, स्ट्रेस की वजह से बच्चों की भूख एकदम चली जाती है. हम ठीक से खाना अगर नहीं खाएंगे तो हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल कम होगा तो फोकस कम होगा, फोकस कम होगा तो हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो करने के हम कैपेबल हैं. और
नींद बराबर लीजिए, वो मेरी आपको सलाह रहेगी। 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। आपको जो एडिशनल टाइम पढ़ाई के लिए चाहिए वो कहीं और से बचाइए, बट अपनी नींद को कम ना करें, इसको जरूर आप ध्यान रखें। दूसरा, जो आपके मॉडल पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपके सामने हैं, उनमें से जितना आप सोल्व कर सकें उसको सोल्व करिए और अपने टीचर्स से उसके बारे में पूछिए कि आपने ठीक किया है, उनसे चेक करा लीजिए। जहां आपसे थोड़ी चूक हुई है उसको समझ लीजिए। बिकॉज इस वक्त आपको ये कोशिश करनी है कि जो आपने सीखा है ड्यूरिंग द ईयर उसको आप बेस्ट कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं आंसर शीट के अंदर, क्योंकि आंसर शीट ही है जो एक एग्जामिनर या इवेलुएटर के पास जाएगी, आप नहीं के पास जाएंगे। तो जो आप अच्छे से लिख सकते हैं उसको लिखिए। और अगर आपको जब भी थोड़ा स्ट्रेस लगता है, जब भी लगता है कि मेरे को घबराहट हो रही है, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, आप किसी एक्सपर्ट टीचर से बात करिए, आप बल्कि अपने टीचर्स से, जो आपके अपने टीचर्स हैं उनसे ज़रूर आप टच में रहिएगा। और जब भी आपको थोड़ा लगे कि मैं थोड़ा, मुझे घबराहट हो रही है या कुछ इस तरह की बात हो रही है, आप जरूर उनसे सलाह लें। आप अकेले कभी परेशान ना हो, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है, जितनी भी मेहनत की है उसका अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। आप बिल्कुल चिंता ना इस वक्त थोड़ी इस बात को चिंता करें कि मैं कैसे और बेहतर अपने आप को प्रेजेंट करूं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, उसका फिक्र आप जरूर करें। बट आप अपने आप ये ना करें कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे कम नंबर आ जाएंगे, कम आएंगे। तो ये इस वक्त आप अपने ऊपर बिल्कुल भी ना हावी होंगे। और वो आप तब कर सकते हैं जब आप अपने पेरेंट्स से लगातार बात करेंगे, और पेरेंट्स अपने बच्चों का इस बात पर जरूर ध्यान दें कि जब भी उनको लगे कि बच्चा थोड़ा सा चुप है या कुछ है, उस पर जरूर से बात करें, उसको समझाएं, मोटिवेट करें, और जितने भी नंबर आएंगे हम उससे खुश होंगे और उसको भी खुश होना चाहिए। तो ये तो प्री एग्जामिनेशन की बात कही। नाउ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो या ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, सो आई वुड गो अ लिटिल बिफोर, जस्ट अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन। तो जो पहली शाम होती है, मेरी बच्चों को हमेशा एक सलाह होती है कि आप उस दिन ना ज़्यादा स्ट्रेस पढ़ने का मत, आपको जो कुछ रिवीजन करना है, जितना भी पढ़ना है आप पढ़िएगा। आप देखिए कि सीबीएसई में तो मैं खासकर कह सकता हूँ, और बाकी बोर्ड्स में भी गैप होता है, कम से कम 1 या 2 दिन का गैप तो हर पेपर के बीच में होता है। तो दिस इज एनफ टाइम टू रिवाइज दोज पेपर्स, सो यू शुड रिलैक्स द प्रीवियस नाइट। आपको उस दिन की नींद के लिए तो मैंने पहले भी बोला आपको, प्री एग्जामिनेशन में भी, लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी आपको नींद बराबर लेनी है। वहां आप नींद कम मत करिएगा, क्योंकि अगर आप 3 घंटे सोए या 4 घंटे ही सोए और आपको फिर अगले दिन एग्जामिनेशन में जाना है, तो यू शुड बी एब्सोल्युटली एनर्जाइज्ड, आपके पूरे अंदर मतलब यू शुड बी वेरी एक्टिव ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि रात भर सोए नहीं और फिर अब आपको नींद जैसा महसूस हो रहा है, तो आपको जितना आता है आप उसको भी ठीक से लिख नहीं पाएंगे। तो ये तो पहली रात का रखिएगा। और हमेशा अपने एडमिट कार्ड, जो भी चीज़ें आपको अगले दिन के लिए चाहिए होती हैं, वो जरूर आप पहले दिन ही चेक करके रख लें। जब आप एग्जामिनेशन हॉल पहुंचते हैं, उससे पहले मैं आपको सलाह दूंगा, जो आपके टीचर्स भी आपको बताएंगे, कि एक दिन पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को देख लीजिए। नाउ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको आंसर शीट मिलती है उस बराबर अपने बहुत साफ सुथरी राइटिंग में शांति से अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट, डेट वगैरह ठीक से बराबर लिखिए। अंदर जो आपको, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, पढ़ने के लिए भी समय मिलता है, आप उसको ठीक से पढ़िए और आप अंदाज़ा लगा लिए कि विच आर द क्वेश्चन विच यू कैन डू वेरी वेल, जिनका आंसर आपको बड़े अच्छे से आता है। और बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता होगा। अब उसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको एकदम से लगेगा कि मैं ये सवाल का तो उत्तर मुझे याद नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इफ देर आर 30 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस देर आर 3 क्वेश्चंस वेयर यू फाइंड दैट यू मे नॉट बी एबल टू आंसर दोज करेक्टली, सो बट देर आर 27 विच यू कैन डू सो वेल। तो आप उन 3 की चिंता ना करके आप उन 27 के लिए कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए कि मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। और ये आपका अपना तरीका होना चाहिए कि आप कौन से सवाल पहले करना चाहते हैं, 1 नंबर वाले या 5 नंबर वाले, आसान या मुश्किल, दैट डिपेंड्स अपॉन योर वे ऑफ अप्रोचिंग दिस एग्जामिनेशन। बट आई यूजुअली सजेस्ट टू द चिल्ड्रन दैट यू मस्ट ट्राई फर्स्ट दोज क्वेश्चंस विच यू कैन डू वेरी वेल, उनको आप अच्छे से कर लीजिए। और जो सवाल आपको लगता है थोड़ा सा आपको समझने में तकलीफ हो रही है, उनको आप बाद में ले जाइए। इसी दौरान में आप ये भी ध्यान रखें कि कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनको आप बीच में, आपका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 या 14 आपको लग रहा है मैं इसको बाद में करूंगा, तो एक ऐसा निशान, ऐसा मार्क उसके ऊपर कर लीजिए, सो दैट जब आप पूरा पेपर कर सके तो आपको ये ढूंढना ना पड़े कि व्हाट विच वाज दैट क्वेश्चन विच आई लेफ्ट फॉर डूइंग लेटर।
तो आपका जैसे ही आप उस मार्क को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर को पलटेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये 4 सवाल 3 सवाल मेरे को अब करने हैं। तो उनको करने के बाद में अपने टाइम को इस तरह से शेड्यूल कीजिए वहां पर भी कि आपके पास कम से कम 15 मिनट रिवीजन के लिए मिल जाएं। तो जब आप उसको रिवाइज करते हैं शांत मन से, तो फिर वो आपको चीज पकड़ में आती है और आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा तो आपने तो सोचा है, जो सोचा था वही शायद मैंने लिख दिया होगा, लेकिन वो लिखा नहीं गया है तो उसको छूट गया, तो आपको नुकसान हो सकता है। जितना आप डिजर्व करते हो उससे फिर आप उतना शायद आपको मार्क्स नहीं मिलते, तो जो अच्छी चीज नहीं। जब जो जितना आपको आता है उतने मार्क्स तो आपको मिलने ही चाहिए। हेंस यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट देयर इन द एग्जामिनेशन एटलीस्ट दैट मच व्हाट यू नो। अब मैं पोस्ट एग्जामिनेशन, ये तो आपका एग्जामिनेशन खत्म हो गया। अब पोस्ट एग्जामिनेशन में यूजुअली क्या होता है, बाहर निकलते ही पेरेंट्स का भी मन होता है ये जानने के लिए, आपका भी मन होता है अपने दोस्तों से बात करने के लिए, आपका कैसा पेपर हुआ, मेरा तो ऐसा हुआ, मेरे इस सवाल में ये छूटा। अब ज़्यादा मैं आप लोगों को सबको सलाह दूंगा, ना बात करें इस क्वेश्चन पेपर के। जो होना था वो हो गया। यहाँ पर पेरेंट्स को भी उत्सुकता रहती है जाने एक बच्चा कैसा करके आया, क्योंकि उन्होंने देखा बच्चे को मेहनत करते हुए पूरे साल, और टीचर्स को भी चिंता होती है। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हाँ ठीक है, जान लें थोड़ा कि अच्छा करके आया होगा, यू हैव डन वेरी वेल, एंड द चाइल्ड शुड ऑल्सो से दैट आई हैव डन इट वेरी वेल। Because if you will try to do the postmortem of the question paper today itself, then it will become an issue. Because क्या होगा कि अगर गलती से कहीं कोई सवाल ऐसा हुआ जो आपको तो लग रहा है आपने ठीक किया है और वो गलत हो गया, तो मन में थोड़ा सा स्ट्रेस आता है कि अरे ये अब मैं क्या करूँ, क्योंकि कर तो सकते नहीं, आपने तो आपकी अपनी आंसर शीट इन्विजिलेटर को दे दी, वो तो चली गई अब चेक होने के लिए। तो ये आप ज़्यादा इसके बारे में बात ना करें, पहले तो थोड़ा रिलैक्स करें, घर जाएं, पेरेंट्स के साथ बातें करें, और उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करने के बाद देन यू स्टार्ट थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट पेपर। उसकी तैयारी करें। आपके पास 2 दिन है या आपके पास 10 दिन है, divide once again or times, schedule the time in such a manner that you do not waste any time, even if it is more time। ऐसा कई बार क्या होता है कि बच्चे, ये भी चूक हो जाती है बच्चों से कि इसमें तो 10 दिन है तो 2 दिन में आराम नहीं कर लूँ ना, वो 2 दिन आप खराब ना करो, आप रिवाइज करो, बिकॉज आप कुछ ना कुछ एडिशनल नंबर उसमें 2-4 ले आओगे। बट जो पुराना जो जिस क्वेश्चन पेपर में आप अपियर हो चुके हो उसके बारे में अब बिल्कुल ना सोचें। जब आपके ये पूरे 5 पेपर या 6 पेपर जिसमें भी आपको अपियर होना है वो इसी तरह से जाना चाहिए। वंस यू आर थ्रू दिस एग्जामिनेशन, नाउ यू कैन ट्राई टू कैलकुलेट दैट व्हाट परसेंटेज आर यू लाइकली टू गेट, क्योंकि अब आपको किसी पेपर में, यहाँ इन 5 या 6 पेपर में तो दोबारा आपको अपियर नहीं होना है। अब आप थोड़ा समझ लीजिए, और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हु आर इन क्लास 12th वुड बी अपीयरिंग इन सम और द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो मेरी तो उनको भी सलाह रहेगी, इसको भी ज़्यादा पोस्टमार्टम ना करें, इसके बारे में भी ज़्यादा एनालाइज ना करें, बल्कि अपने जो, मैं 12वीं के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिनमें आपको अपियर होना है, आप उस पर फोकस करें। जो बाकी बच्चे हैं, 10वीं के बच्चे हैं, या आप 9वीं 11वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, वो डेफिनेटली सोच सकते हैं कि मैंने कहाँ पर मेरे से थोड़ी चूक हो गई, कहाँ मुझे और अच्छा कर सकता था, सो दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर you are able to take care of those lacunas, there certain lapses which would have happened because of oversight या जो भी कारण रहा हो। तो और उसके बाद जब तक रिजल्ट ना आए तब तक बिल्कुल चिंता न करें कि क्या होगा मेरा, क्योंकि कुछ नहीं, जो होगा वो होगा, और आप अच्छा ही करेंगे। जिस बच्चे ने जितनी पढ़ाई की है वो डेफिनेटली उतने नंबर पाएगा। अब यहाँ पे कई बार बात उठती है कि आपने शायद उन बच्चों के बारे में ज़्यादा बात की जो थोड़ा कम कहीं पढ़ पाए होंगे। स्ट्रेस तो उन बच्चों के अंदर भी होता है जो जिन्होंने पूरी तैयारी की है, मैं मानता हूँ ये सही बात है, लेकिन सलाह मेरी उन बच्चों को भी यही रहेगी जो जिनको मन में है कि मैं 100% मार्क्स लाऊंगा या 99% लाऊंगा या 98% लाऊंगा। आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत कुछ सीखा है, बस तरीका वही अपनाना है, स्ट्रेस अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है, और आपने जो कुछ सीखा है उसको पूरे को वहां करके आओ। हो सकता है कोई सवाल 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क आंसर ऐसा हो जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि मैं क्या करूं। नथिंग टू वरी, नोबडी इज बेस्ट एवर, वी ऑल हैव स्कोप टू बिकम बेटर। सो डोंट वरी अबाउट कि कभी ऐसा लग भी गया आपको कि 1 नंबर 2 नंबर का आपको थोड़ा लग रहा है कि मैं नहीं शायद ठीक कर पाया हूं या मुझे नहीं आता है।
तो आप फिर कहूँ कि उसको सोच करके सिर्फ एक नंबर को 99 मार्क्स को मत भूलो कि आपको 99, 98, 90 का आपको आता है। आप उससे प्रेरित होइए, उससे अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। तो मेरा पेरेंट्स को, टीचर्स को भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो सो कॉल्ड आपका रिजल्ट बेहतर देने वाले बच्चे होते हैं, कई बार ज़्यादा आप उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर पुश कर रहे हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन और आफ्टर एग्जामिनेशन अगर पुश करेंगे, मतलब आई वुड बी लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दैट, क्योंकि बच्चों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है, कहीं पे कुछ चूक हो सकती है। बेस्ट ऑफ द पीपल डू रियली लैक समवेयर बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो ये तो बड़ा एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। क्यों हम ये मानते हैं कि हम तो अब 100% ही लाएंगे, नहीं लाए तो हम कमजोर हो जाएंगे? नहीं, आपके 2 नंबर कम भी आ गए, 4 नंबर कम भी आ गए, उससे आपकी लर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आपने सीखा है वो तो सीखा ही है, नंबर 100 आए या नंबर 50 आए, that does not really take away your learning what you have done during the course of the year। आप बच्चों ने बहुत मेहनत की है, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, पेरेंट्स ने बच्चों के साथ बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेहनत की है। अब उस मेहनत को खाली स्ट्रेस की वजह से नुकसान ना पहुंचाओ। So have a little bit of stress, no worries about it, but that stress should be helping you to focus more, then you really taking your focus away। ये आप करिए, आप अच्छा करेंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने मेहनत की है, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, गॉड ब्लेस अस ऑल।